Hello guys, welcome to my channel Learning Smart with Dipanata. I am Dipanata and today we're going to discuss a beautiful novel, The Bluest Eye by Toni Morrison. This novel is also the winner of a Nobel Prize, and this particular novel gives us life lessons that we should actually implement and learn in our lives. Along with that, this particular novel is also there in the IGNOU MEC 6 syllabus for the students who are doing masters, and the questions from these novels are also asked in your competitive exams. So let's start without any further ado. Here you can see the topics that we are going to discuss further: setting and context of the novel, plot of the novel, summary. Usually you do not get summaries so easily in English written version and also translated in Hindi, but here I'm going to explain you the entire story in short so that you don't have to read the entire novel. Along with that, themes are discussed, characters, important characters are discussed, the style and significance of the novel, and a quick, sum up. So everything is there in this particular video, so do not skip and keep watching. So the setting and context. The novel is set in 1940s in Lorain, Ohio, Toni Morrison's own hometown. So Toni Morrison belonged from this particular place, and at that time ideas of beauty were dominated by whiteness, blonde hair, blue eyes and fair skin. Whiteness means basically they meant beauty, white skin, सुंदर बाल हो, colored hair, जैसे foreigners के होते हैं वैसे. So but for African American girls ये तो unnatural था, because African American girls का जो skin color था, it was basically dark. So this created painful struggles with self image and self worth for them. उन लोगों को लगता था कि अरे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है सोसाइटी में, हम लोग क्यों, भगवान ने हमको भेजा है, बिकॉज वी आर नॉट ब्यूटीफुल, पीपल विल नॉट लाइक अस, हम बस मेड्स बन के ही रह जाएंगे सबके घर पे, कोई हमें पूछेगा नहीं, हमारा कोई सेल्फ वर्थ सेल्फ इमेज है ही नहीं. सो दे यूज टू स्ट्रगल विद दिस मेंटालिटी. Now let's see the characters. First, most important character that we have is Pecola Breedlove. Now Pecola Breedlove is a main protagonist of the novel. The tragic figure whose longing for blue eyes symbolizes the destructive power of racial beauty standards. इसका मतलब क्या है कि उसका हमेशा से ही चाहता है कि मेरा ब्लू आइज़ हो, किसी दिन मेरा आइज़ जो है वो ब्लू हो, ताकि लोग मुझे, मतलब वो मानती थी कि ब्लू आइज़ मतलब बहुत सुंदर कुछ, इट सिम्बलाइज्ड वाइटनेस, कि मुझे अगर ब्लू आइज़ हो जाएगा तो सब मुझे इंपॉर्टेंस देंगे, सब मुझसे प्यार करेंगे, सोसाइटी में मेरा नाम बढ़ेगा, सो शी हैड दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी. सो शी वांटेड ब्लू आइज़ फॉर हर एंटायर लाइफ. सो उसका जो लाइफ है बहुत ट्रैजिक रहा है, उसी के बारे में पूरा ये नोवेल है, उसी के अराउंड सराउंडेड. उसके मम्मी पापा क्या कैसे उसके साथ बिहेव किए, क्या नहीं, उसके जो दो फ्रेंड्स थे, क्लॉडिया मैकटीर. सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे. सो द मेन प्रोटैगनिस्ट इज बेसिकली पेकोला. नेक्स्ट इज क्लॉडिया मक्टीर. So Claudia McTeer, you can say, is the narrator who questions these standards and resists them. Next is Charlie Breedlove. Charlie Breedlove is Pecola's father, whose own traumatic past leads him to violence and abuse. तो चॉली बेडलव बेसिकली, अभी आप ये जान लो कि वो पेकोला के पिता, मतलब फादर थे, एंड पॉलिन ब्रेडलव वाज हर मदर. सो पेकोला's मदर who finds comfort in white beauty cultures but rejects her own daughter. कि पेकोला के मम्मी को भी वही सब अच्छा लगता था, वाइट पीपल, स्किन कलर, उसी सब चीज़ों से वो अट्रैक्टेड थी, और क्योंकि उसकी बेटी डार्क स्किन थी वो ये सब रिजेक्ट करती थी, मतलब उसको नहीं पसंद करती थी उतना. तो देखा जाए तो पेकोला को कभी वो इम्पोर्टेंस अपनी फैमिली से मिला ही नहीं. इनफैक्ट शी वॉज टॉर्चर्ड मोर. द प्लॉट. द स्टोरी शोज दैट पेकोला ब्रीडलव, एन 11-year-old black girl, Pecola believes that she is ugly, unwanted and unlovable. Why? Because she does not fit the dominant beauty standard. तो उसको ऐसा लगता था कि भाई मैं तो अच्छी नहीं दिखती, मैं तो डार्क स्किन हूँ, मैं बहुत अगली हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता है और कोई मुझे प्यार करेगा भी नहीं मेरे स्किन कलर के लिए. क्योंकि जो डोमिनेंट ब्यूटी स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से कि वाइट होने चाहिए, गोरे लोग ही सुंदर होते हैं, उनके ब्लू आइज़ होते हैं, उनके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, जो कि उसके पास कुछ भी नहीं था. So that is why she felt unlovable. She dreams of having blue eyes, thinking that would make her accepted and loved. तो वो सोचती थी कि काश मेरे पास ब्लू आइज़ होते और मैं फिर बहुत सुंदर दिखती और सब मुझे एक्सेप्ट कर लेते, सब मुझसे प्यार करते, मेरी वाह करते, मुझे इंपॉर्टेंस मिल जाती सोसाइटी में. सो दिस वॉज हर वॉन्ट. सो हर स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द आइज ऑफ क्लॉडिया एंड फ्रेडा मक्टीर. सो जो पेकोला की स्टोरी है वो किसने नरेट किया है इस नोवेल में? क्लॉडिया एंड फ्रेडा मक्टीर ने. They were two sisters who witnessed Pecola's tragic downfall. तो ये दो जो थे उसके बहुत करीब थे और उन दोनों ने जो पेकोला का पूरा लाइफ है बहुत क्लोजली उसे देखा है.
Through their voices, Morrison reveals both innocence and awareness about society's brutality. So ये क्या कहते हैं कि ये जो क्लॉडिया एंड फ्रेडा मक्टीर है, ये दोनों तो नरेट कर रहे थे स्टोरी को, मतलब जो पोइट को ऑथर को बताना था वो बता रहे थे, और उनके थ्रू पूरा ये स्टोरी दिखा रहे थे पब्लिक को कि सोसाइटी उस टाइम कितनी क्रूअल थी, कितनी ब्रूटल थी. ओके, सो नाउ लेट्स सी द समरी. 9-year-old Claudia and 10-year-old Freda McTeer live in Loren, Ohio with their parents. It is the end of Great Depression, and the girls' parents are more concerned with making ends meet than with lavishing attention upon their daughters. But there is an undercurrent of love and stability in their home. So, author is trying to say talk about the society of that time, which was the end of Great Depression time, and parents of Claudia and Freda, just like other families, were concerned about their, how to earn money and how to, bring stability to their lives. Because उस टाइम इतना ज़्यादा वक्त बुरा चल रहा था एट द एंड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन दैट पीपल वर स्ट्रगलिंग. सो उस टाइम पे अटेंशन देना डॉटर्स के ऊपर उतना ज़्यादा वो लोग नहीं कर पा रहे थे. सो द मक्टीर्स टेक इन अ ब्रॉडर हेनरी वॉशिंगटन एंड ऑल्सो a young girl named Pecola. Pecola's father has tried to burn down his family's house, and Claudia and Freda feel sorry for her. Pecola loves Shirley Temple, believing that whiteness is beautiful and that she is ugly. So McTeer, उन्होंने हेनरी वॉशिंगटन को और एक यंग गर्ल था जिसका नाम था पेकोला, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, उसको अपने घर पे रखा था. क्यों? क्योंकि पेकोला के जो पिता थे वो उन्होंने उनका घर जला दिया था. ही वॉज अ ड्रंकार्ड. इतना पिया था उन्होंने, इतना ज़्यादा वो अल्कोहलिक थे, इतना ज़्यादा पिया था कि उन्होंने उनका घर ही जला दिया. तो क्लॉडिया एंड फ्रेडा को बहुत बुरा लगा उनके लिए. किसके लिए? पेकोला के लिए. नॉट फॉर फादर बट फॉर पेकोला. तो उन दोनों ने बोला कि आओ तुम मेरे घर पे रह लो. सो पेकोला लव्स शर्ली टेम्पल. सो पेकोला जो थे मेन कैरेक्टर, वो शर्ली टेम्पल से प्यार करता था. क्यों? क्योंकि उसको वाइट पीपल बहुत ज़्यादा पसंद थे. ओके, नाउ पेकोला मूव्स बैक इन विथ हर फैमिली एंड हर लाइफ इज़ डिफिकल्ट. अब कुछ टाइम बाद पेकोला वापस अपने घर चली जाती है अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए. मम्मी का नाम क्या था? पॉली. एंड पापा का नाम क्या था? चॉली. ओके, सो फादर ड्रिंक्स, हर मदर इज डिस्टेंट एंड द टू ऑफ देम ऑफन बीट वन अनदर. तो ऐसा उसका घर का सिचुएशन था कि उसके पापा बहुत पीते थे और उसकी मम्मी अलग थी. डिस्टेंट मतलब उन लोगों से अलग रहती थी. उनके लिए उनका फैमिली कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता था उसकी मम्मी के लिए. ठीक है, बेटी से ना प्यार करती थी, ना हस्बैंड से कोई प्यार था, ना मतलब था. तो ऐसा था. और वो दोनों मिलके एक दूसरे को बहुत मारते थे. मम्मी पापा के बीच में फिजिकल फाइट भी होती थी. तो हर ब्रदर सैमी फ्रीक्वेंटली रन्स अवे. उसका भाई ये सब देख के एकदम परेशान होके बहुत ऐसा, मतलब मैक्सिमम टाइम वो भाग जाता था घर से कि धर इतना झमेले से अच्छा है कि लेट मी नॉट लिव हियर ओनली. ओके, सो पेकोला बिलीव्स दैट इफ शी हैड ब्लू आईज शी वुड बी लव्ड एंड हर लाइफ वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड. पेकोला क्या विश्वास करती थी कि काश मेरे पास ब्लू आईज होता और मैं बहुत सुंदर होती तो सब मुझसे बहुत प्यार करते और सब मुझे इंपॉर्टेंस देते और ये सब सिचुएशन शायद ठीक हो जाता, जो कि रियलिटी नहीं है, पर उसको ऐसा लगता था कि हो सकता है ऐसा हो. Meanwhile, she continually receives confirmation of her own sense of ugliness. The grocer looks right through her when she buys candy. Boy makes fun of her, and a light-skinned girl, Maureen, who temporarily befriends her, makes fun of her too. So, उसका जो ये बिलीफ था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, ये उसको विश्वास हो गया था. कैसे? कि लोग उसके अगल बगल जैसे थे सब उसको ये ना अपनी उनकी हरकतों से समझा देते कि भाई तू सुंदर नहीं है. हाउ द ग्रोसर, जब भी कोई सामान लेने जाती थी ग्रोसर के पास, सब्जी लेने कुछ, तो वो ऐसे करके देखते थे उसके तरफ कि भाई तू, ऐसे ही पता चल जाता कि ये सही नहीं लग रही है ये. जब वो कुछ कैंडीज़ या कुछ खरीदने जाती थी, लड़के उसका मजाक उड़ाते थे. एक गोरी लड़की थी मॉरीन, जो टेम्परली उसको बार बोलती कि तू मेरा दोस्त नहीं है, बी फ्रेंड्स, और उसका मजाक उड़ाते थे. सो शी इज़ रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर किलिंग अ बॉयज़ कैट एंड इज कॉल्ड अ नास्टी लिटिल ब्लैक बिच बाय हिज मदर. सो क्या होता था, उसको गलत एक ब्लेम दिया था कि तू काला जादू करती है, तूने एक का बिल्ला मार डाला है, और इसीलिए उसको ब्लैक विच ऐसे बुलाते थे वो लोग. We learn that Pecola's parents have both had difficult lives. Pauline, her mother, has a lame foot and has always felt isolated. She loses herself in movies, which reaffirm her belief that she's ugly and that romantic love is reserved for the beautiful. तो क्या था कि पेकोला के जो पेरेंट्स थे उनके लाइफ्स बहुत डिफ़िकल्ट थे. कैसे? पहले उसकी जो मम्मी थी उसका एक लेम फुट था और वो हमेशा अकेला अकेला फील करती थी, दैट भाई मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं आइसोलेटेड हूँ. ठीक है, वो बहुत मूवीज़ देखती थी और उसमें वो खो जाती थी और वो ये कंफर्म कर लेती थी. बिकॉज मूवीज़ में हम लोग को दिखाते हैं ना कि हीरो और हीरोइन बहुत हमेशा सुंदर होते हैं और उनके लंबे सुंदर बाल होते हैं, गोरे होते हैं, अलग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मूवीज़ सेट करते हैं हमारे लिए.
तो वो भी इतना मूवीज़ देखती थी कि वो उसी को सच मान लेती थी कि भाई ऐसे ही लोग ब्यूटीफुल होते हैं और मैं तो ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं हूँ। तो रोमांटिक लव जो है, इंसान का जो प्यार होता है या फिर जो पार्टनर का प्यार होता है जैसे हीरो हीरोइन के बीच में, वो सुंदर लोगों के साथ ही हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकते। तो ये उनका बिलीव, मैं इतना मूवी देखती थी कि वो एकदम कन्विंस्ड ही हो गई थी कि भाई ऐसा ही है। She encourages her husband's violent behavior in order to reinforce her own role as a martyr. She feels most alive when she is at work cleaning a white woman's home. She loves this home and despises her own. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो ना अपने हस्बैंड के जो चोली का जो इतना गलत वायलेंट बिहेवियर था, इतना रूड था, वो इतना वायलेंट था, डोमेस्टिक वायलेंस करता था और भी बहुत कुछ किया उसने, बाद में हम लोग देखेंगे। तो उन सब चीज़ों को वो इनकरेज करती थी, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने आप को बेचारी दिखाना चाहती थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी जब वो एक इंग्लिश वुमन, वाइट वुमन के घर पे काम करती थी। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। वो अपने घर को बिल्कुल नहीं मिस करती थी, घर के बारे में उसको कोई चिंता नहीं था, घर गंदा है, अच्छा है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, खाए पिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि उसको लगता था कि मुझे उनके घर में ही खुशी है, क्योंकि वो वाइट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो चोली पेकोला's father was abandoned by his parents and raised by his great aunt, who died when he was a young teenager. He was humiliated by two white men who found him having sex for the first time and made him continue while they watched. तो चौली का भी कुछ बहुत सैड पास्ट रहा है। जैसे कि चौली जो कि पेकोला के पापा थे, उनको बचपन में ही उनके पेरेंट्स छोड़ के चले गए और उनकी जो बड़ी आंट थी उन्होंने उसको रेज़ किया, वो भी मर गई। और उसके बाद व्हेन ही वाज अ यंग टीनेजर, तब वो भी मर गई। दो वाइट मैन थे जिसने चौली को सेक्स करते हुए पकड़ लिया था, देख लिया था और उन्होंने उसको इतना ह्यूमिलिएट किया कि उसको बोला कि तुम कंटिन्यू करो, हम देखना चाहते हैं, हमारे सामने करो। तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग था वो। तो उसके साथ भी बहुत कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत और भी चीज़ें जो उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये जो उसका वायलेंट बिहेवियर है वो उसकी वजह से आता है। जैसे बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक पास्ट होता है जिससे ये सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं। तो चौली का भी ऐसा कुछ बहुत ट्रैजिक पास्ट था जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव करता है। He ran away to find his father but was rebuffed by him. By the time he met Pauline, he was a wild and rootless man. तो जब तक वो पॉलिन से मिला तो तब तक उसकी उनकी जो वाइफ थी पॉलिन, तो तब तक वो बहुत ज़्यादा एक वाइल्ड इंसान हो गए थे, ख़राब इंसान हो गए थे, बहुत रूटलेस हो गए थे। क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब कुछ फेस कर कर चुके थे लाइफ में कि उनका वो बिहेवियर लाइफ के प्रति वैसा ही हो गया, वायलेंट हो गया। तो ही फील्स ट्रैप्ड इन हिज मैरिज एंड हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। तो उनको उनकी शादी में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील होता है, खुशी नहीं मिलती और ज़िंदगी से भी उनका जैसे मर्ज़ी उठी है कि हाँ हम खुश होकर जिएंगे रहेंगे। जस्ट लाइक ठीक है, हो रहा है होने दो, इसीलिए उनका बिहेवियर ऐसा हो गया। Now Charlie returns home one day, finds Pecola was washing dishes and rapes her. तो एक दिन चॉली, जो कि पेकोला के पापा है, वापस आता है घर और पेकोला को देखते कि वो बर्तन धो रही है एंड उसको रेप कर देते हैं। जब पेकोला की मम्मी को ये बात पता चलती है कि वो उसको मिलती है पेकोला अनकॉन्शियस होके, फ्लोर पे गिरी पड़ी थी, तो उसको बिलीव ही नहीं होता कि ये सच में ऐसा चॉली ने किया है और पेकोला जो बोल रही है वो सच है। ऊपर से क्या करती है वो पेकोला को ही उल्टा वो मारती है। रादर देन कन्फ्रंटिंग चॉली, वो पेकोला को ही उल्टा मार देती है। पेकोला गोज टू शॉपहेड चर्च, अ शैम मिस्टेक, एंड आस्क्स हिम फॉर ब्लू आइज। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, ही यूजेस हर टू किल अ डॉग ही डिसलाइक्स। तो पेकोला क्या करती है, पेकोला सब चीज़ से हार मान के, इतना जो उसके साथ टॉर्चर होता है, बार बार उसके पापा उसको रेप करते हैं, उसको इम्प्रेगनेंट कर देते हैं, वो क्या करती है, वो चर्च में जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरे को ब्लू आइज़ चाहिए। ब्लू आइज़ उसको लगता है कि ऐसे मिल जाता है ना। तो क्या करता है, जिस इंसान से वो कहती है वो भी उसका फ़ायदा उठाता है, वो भी उसको एक ऐसा चीज़ देता है, बोलते हैं कि हाँ जाके जाओ ये चीज़ लो, जाके कुत्ते को खिला दो और तुमको ब्लू आइज़ मिल जाएगा। पर क्या होता है, वो कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा होता है या कुछ जहर उसमें रहा होता है जो वो पेकोला को देते हैं, वो कुत्ता मर जाता है। तो सबको क्या लगता है उल्टा कि अरे पेकोला तो एक विच है, वो ब्लैक मैजिक करती है, उसकी वजह से डॉगी मर गया, ऐसा होता है। तो वहाँ पे भी वो धोखा खा जाती है। Claudia and Freda found out that Pecola has been impregnated by her father, and unlike the rest of the neighborhood, they want the baby to live. They sacrifice the money that they have been saving for a bicycle and plant marigold seeds. तो क्या होता है, क्लॉडिया और फ्रेडा को पता चलता है कि पेकोला को तो उसके पापा ने रेप करके प्रेग्नेंट कर दिया और उसकी सोसाइटी में कोई नहीं चाहता कि वो बच्चा जिंदा रहे, पर उन दोनों को चाहिए कि नहीं, वो बच्चा जिंदा रहे। तो वो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे, सेव कर रहे थे, ताकि वो लोग दोनों एक बाईसाइकिल खरीद सकें। पर उनके दोस्त का ये हालत देख के उन्होंने वो जो पैसा सेव करके रखा था, उन्होंने उसको लगा दिया उनके बगीचे पे मैरीगोल्ड सीड्स उगाने में, क्योंकि उन लोगों ने बिलीव किया कि अगर ये मैरीगोल्ड सीड्स उगे, फ्लावर हुआ, मैरीगोल्ड फ्लावर्स हुए, तो ही पेकोला का जो बच्चा है वो ज़िंदा रहेगा, वो बच्चा आएगा ज़िंदगी में, अर्थ में, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये विश्वास के साथ उन लोगों ने वो पैसा वहाँ सैक्रिफाइस कर दिया।
सो द फ्लावर्स रिफ्यूज टू ब्लूम एंड पेकोलाज बेबी डाइज, लेकिन फ्लावर्स नहीं ब्लूम होता है और पेकोला का बच्चा जो है वो मर जाता है. Jolly, who rapes Pecola a second time and then runs away, dies in a workhouse. Jolly फिर से पेकोला को रेप करता है और भाग जाता है, पर फिर वो मर जाता है वर्कहाउस में. पेकोला goes mad, believing that her cherished wish has been fulfilled and that she has the bluest eyes. एंड में क्या दिखाता है कि पेकोला को ऐसा लगता है वो पागल हो जाती है. ठीक है, इतना सब कुछ झेलने के बाद एंड में वो पागल हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि अरे फाइनली मेरे को ब्लू आइज मिल गया है. पागलपंती में उसको ऐसे ही लगता है कि उसको ब्लू आइज मिल गया है और उसका जो विश है वो फुलफिल हो गया है और वो बहुत खुश होती है, पर एक्चुअली में वो नहीं होता है. उसको कोई ब्लू आइज नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है. वो बस उसका एक भर में उसको ऐसा लग रहा है पागलपंती में कि मेरे को मिल गया है एंड शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी नाउ. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द समरी. नाउ थीम्स. सो थीम्स स्टार्टिंग विद ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. इस नोवेल में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को दिखाया गया है कि मॉरिसन क्वेश्चन करते हैं कि सच में क्या गोरापन मैटर करता है सोसाइटी में एक जगह बनाने के लिए या रिस्पेक्ट पाने के लिए, या इंसान को सिर्फ गोरा होने से ही क्या इंसान खूबसूरत होता है, कि उनकी मॉरल वैल्यूज़ और उनका जो इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये दिखाने की कोशिश किया गया है पूरे स्टोरी में. रेसिज्म एंड इंटरनलाइज्ड रेसिज्म. Characters often adopt society's prejudices, turning them inward or against their own people. तो कैरेक्टर, ये जो रेसिज्म था, जो सोसाइटी अपने थॉट्स को पोर्ट्रे करती थी कि गोरे लोग ही सही होते हैं, वो लोग ही ब्यूटीफुल होते हैं, उन्हीं को रिस्पेक्ट मिलता है, तो जो सोसाइटी का माइंडसेट था वो पीपल अडॉप्ट कर लेते थे. उस वक्त के लोग अडॉप्ट कर लेते थे. और इनफैक्ट अभी भी हम लोग देखना, सोसाइटी में कुछ अगर माना जा रहा है हम लोग उस चीज़ को मान लेते हैं कि भाई सही है, तो वो हम लोगों के लिए ही बुरा है. वो चीज़ हम लोग ही अंदर घुटते रहते हैं उस चीज़ से. Next is family and trauma. Pecola's abusive family life shows how cycles of pain pass through generations. पेकोला का जो फैमिली था बहुत ज़्यादा अब्यूजिव था, वो तो हमने देखा ही है, पर ये वो भी दर्शाता है कि देखो उसकी मम्मी का एक पास्ट था, उसके पापा का एक पास्ट था, उसके भाई भी उस चीज़ से गुजरा, वो भी उस चीज़ से गुजर रही है. तो पास्ट कितना ज़्यादा एक पूरे जनरेशन इफेक्ट करता रहता है, वही ये नोवेल में दिखाया गया. दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस नोवेल. Nuisance and loss. The contrast between Claudia's resistance to white dolls and Pecola's yearning for blue eyes highlights how children internalize society's ideals differently. तो एक कॉन्ट्रास्ट बनता है कि क्लॉडिया को वाइट डॉल्स बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन पेकोला को बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लू आइज़ और वाइट पीपल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो सोसाइटी का भी कॉन्ट्रास्ट है कि सोसाइटी में दो तरीके के लोग लिव करते हैं. एक जो उस चीज़ को मानता है, उस चीज़ को बिलीव करता है, और एक जो उसके अगेंस्ट भी जाता है. ओके, तो सोसाइटी का दो पहलू इसमें पता चलता है हम लोग को. स्टाइल एंड सिग्निफिकेंस. मॉरिसन्स राइटिंग ब्लेंड्स लिरिकल स्टोरी टेलिंग विथ रॉ रियलिज्म. एक लिरिकल स्टोरी टेलिंग तो है ही, पर उसमें वो मॉरिसन का जो राइटिंग है उसमें वो ये शो करता है कि रियल बातें भी जो सोसाइटी में तब होती थी वो भी एकदम वो क्लियरली रॉ तरीके से दिखाते हैं. शी एक्सपेरिमेंट्स विथ नरेटिव वॉइसेस शोइंग बोथ पर्सनल पेन एंड कल्चरल क्रिटिक. Published in 1970, The Bluest Eye was Morrison's first novel and it's boldly challenged America's myths about race and beauty. तो ये नोवेल बोल्डली अमेरिका में जो रेसिज्म चलता था उसको बहुत ही बोल्डली चैलेंज करता था. इवन टुडे इट स्पीक्स टू इश्यूज ऑफ कलरिज्म, बॉडी लैंग्वेज और बॉडी इमेज एंड आइडेंटिटी. तो अभी भी ये नोवेल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है रेसिज्म को लेके, बॉडी इमेज को लेके, आइडेंटिटी को लेके, कि ब्लैक लोगों को वो आइडेंटिटी उस वक्त नहीं मिलती थी. ओके, कंक्लूजन. Now let's sum up. The Bluest Eye is not just Pecola's story, it's a mirror that is held up to society, asking us to see how dangerous beauty standards can be. It's painful, poetic and unforgettable. तो अब कोई भी आंसर लिख लो, इसमें आप कंक्लूजन डाल सकते हो. ये वाला इट्स वेरी नाइस कंक्लूजन स्टेटिंग दैट ये पूरी स्टोरी में हमें क्या पता चलता है कि ब्लूएस्ट आई सिर्फ एक पेकोला की स्टोरी नहीं थी, पर एक सोसाइटी का जो एक आईना है वो हमें दिखाया गया कि सोसाइटी कैसी है, कितनी डेंजरस हो सकता है ये रेसिज्म, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करना किसी की लाइफ के लिए कितना पेनफुल हो सकता है. पोएटिक लगेगा पर वो इंसान भूल नहीं पाता है पूरी ज़िंदगी तक कि मेरे साथ क्या हुआ. वो उसी में घुटता रह जाता है. आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट प्रिटी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नहीं मिलेगा. तो इट्स वेरी वेरी दैट ब्लैक साइड और बैड साइड ऑफ द सोसाइटी दैट इज शोन इन दिस नोवेल. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया है बिकॉज आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन वन वीडियो सो दैट आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए. आई होप सो इट वॉज a very very interesting and informative video. So if you've liked the video, please do like, subscribe and share the video with your friends and family. Thank you very much.